here in Khajuraho Lok Sabha in Panna with BJP candidate and Member of Parliament B.D. Sharma. Khajuraho, one of the 7 wonders of India, is around 400 kilometers from Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. The constituency has a population of about 2.5 million. 18.7% of the population lives in urban areas, while 81.3% of the district is rural. Scheduled castes and scheduled tribes make up 18.5% and 15% of the population respectively. 92.23% are Hindu and 6.47% are Muslim. 1.8 million people qualified to vote in the 2019 Lok Sabha polls, of which 68.12% turned up to vote. The sitting Member of Parliament here is BJP's Vishnu Dutt Sharma. In 2019, he won the election by a margin of 4,92,000 votes. He got 64.49% of the vote. He defeated Congress's Kavita Singh, who got only 25.34% of the vote. This time around, Vishnu Dutt Sharma is pitted against R.B. Prajapati, or Raja Bhaiya as he is popularly called. He belongs to the All India Forward Bloc. The Congress and the Samajwadi Party have extended their support to the candidate. The Khajuraho constituency is a BJP bastion. The party has been winning the seat since 1989, barring 1999 when Satyavrat Chaturvedi from the Congress won the seat. Uma Bharti of the BJP won the seat 4 consecutive times from 1989 to 1998. Khajuraho is one of the most popular tourist destinations in India. It has the country's largest group of medieval Hindu and Jain temples, famous for their sculptures. The Khajuraho group of monuments has been listed as a UNESCO World Heritage Site since 1986. Khajuraho derives its name from the Sanskrit term khajura, the date palm. The temples belong to the Hindu as well as the Jain religions. Of the original 85 temples, only 20 have survived destruction. The Khajuraho temples were rediscovered in the 1980s after being neglected for centuries. The Khajuraho temples were built in the 9th century by the Chandela dynasty and are famous for their Nagara-style architecture. The temples have intricately carved sculptures of Nayakas and deities. इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्र साल के लड़न से रही न कहूँ होंस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो लोकसभा में, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में और न्यूज़ एक्स के खास कार्यक्रम रोड स्टॉप में। तमाम सारी बातों के बीच इस लोकसभा की खासियत है जो कि खजुराहो में आती है। ये बुंदेलखंड का इलाका है, 3 ज़िलों से मिलकर बनी है, जिसमें पन्ना है, जिसमें छतरपुर है और जिसमें कटनी है। पन्ना इसलिए क्योंकि यहाँ हीरा निकलता है, हीरे की खदान है, लेकिन लोगों के नसीब में हीरे जैसी किस्मत नहीं है। यहाँ भूखमरी है, यहाँ परेशानी है, यहाँ पलायन है, यहाँ बेरोज़गारी है, लोगों के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। लंबे समय से लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के नसीब में वो खुशी है नहीं, उनके चेहरे में वो चमक नहीं देखी जाती जो चमक हीरे में देखी जाती है। आज इसी लोकसभा में, जो कि बी.डी. शर्मा की लोकसभा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी बार बीजेपी उन्होंने टिकट दिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस तमाम लोकसभा के मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उनकी समस्याओं को दिखाऊंगा और लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा। Vishnu Dutt Sharma was born in 1970 in Morena, Madhya Pradesh. He completed his graduation from the Government Agriculture College in Bhind. He is married to Dr. Stuti Sharma. He began his political career as an ABVP General Volunteer in 1987. He joined the BJP in 2013 and currently serves as the BJP President in Madhya Pradesh. People dancing on the beats of the dhol. Fireworks lighting up the sky. Loudspeakers blaring devotional songs as folk dances add to the fanfare amid chants of Jai Shri Ram. The entire neighborhood has stepped out to watch this spectacle. It's the Ram Navami procession and the streets are decked up to welcome Lord Ram on his chariot.
Amidst it all, the BJP candidate Vishnu Dutt Sharma arrives on the spot wearing the traditional saffron turban. The crowd gathers around him as he takes part in the procession. He pays a visit to the local Durga temple and offers prayers. 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में धर्म एक मुल्क मुद्दा है। इस वक्त खजुराहो लोकसभा से बीडी शर्मा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीडी शर्मा जी, दूसरी बार आपकी उपस्थिति है, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दी है, किस तरीके से माना जाए लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से देश के अंदर महत्वपूर्ण है और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है, बुंदेलखंड में ये संकल्प और प्रबल हुआ है कि खजुराहो लोकसभा ऐसी है कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव मैदान छोड़ के भाग गई और आज इंडी गठबंधन के लोग थे वो भी भाग गए। आज जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को खजुराहो लोकसभा के अंदर ऐसा बहुमत से। अमूमन जब होता है कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, भाग गए हैं, इंडी गठबंधन को एकमात्र सीट मिली थी वो भी चली गई और ये राम की कृपा है, रामनवमी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मशक्कत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ये क्या है? हम प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उसी उत्साह और उमंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर बूथ पर जीते। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 370 वोट बढ़ाना हर बूथ पर, इस टारगेट पर हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से जो काम कर रहे हैं, इस बार खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनेगा। आज रामनवमी का पर्व है और इस पर्व में आप देख रहे हैं कि जनता का उत्साह और उमंग आज का दिन पूरे भारत के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव है और उत्साह और उमंग चौगने उससे आज जनता जनार्दन सब आज इस अभियान में जुटी है और इस बार इतिहास बनेगा। तो चलिए आपके साथ चलते हैं और जनता का अपार जन समर्थन देखते हैं। The BJP leader performs the aarti. The celebrations then go on. We join Vishnu Dutt Sharma in the morning at the breakfast table. It's a simple vegetarian fare of poha and parathas. बुंदेलखंड में जब भी कोई बीमार पड़ता था या कोई बड़ी दुर्घटना होती थी तो वो व्यक्ति या तो भोपाल जाता था या ग्वालियर जाता था या फिर दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है, शिक्षा का बड़ा संकट रहा है, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर लोगों को खटकती है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या उसके ऊपर का इलाका आप चले जाए, रीवा सतना, एक रेल आवागमन को लेकर जो रेल है उसकी कमी लोगों को खटकती है। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ शुरुआत की? ये आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी कि रेलवे लाइन को लेकर के एक बड़ी सौगात जो शुरुआत तो उस समय हुई थी, लेकिन खजुराहो से सिंगरौली का जो रेलवे लाइन है पन्ना से होते हुए जो कनेक्ट करेगा, मुझे लगता है कि उसके काम को गति देने के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत आभार करता हूं कि आज उन्होंने खजुराहो रेलवे स्टेशन को या बुंदेलखंड को जो सौगात दी है। मनोज जी, आज वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो टूरिज्म को नई एक बूस्टअप करने के लिए उसका बड़ा लाभ हमें मिला है पूरे क्षेत्र को, और वो आपके खाते में जाता है। और वो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बर्ड हेरिटेज है और आइकॉनिक सिटी है प्रधानमंत्री की, यहाँ वंदे भारत हम देंगे। विजिबिलिटी से लेकर के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो सौगात मिली और आज आप देखेंगे कि उसके कारण से बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक बड़ी चीज़ और है और जी, बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन खजुराहो लगभग 250-300 करोड़ का जो देश के चुने हुए रेलवे स्टेशन उनमें से तैयार हो रहा है। पन्ना का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन हो गया, तो ये रेलवे को भी एक बड़ी सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक बजट रेलवे के अंदर अगर किसी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश को दिया है, और मध्य प्रदेश में किसी को ज़्यादा दिया है तो खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया। देखिए खजुराहो लोकसभा जो है उसमें पन्ना जिला आता है और
एक फिल्म में आपने गाना सुना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और इसलिए यहाँ पर लोग हीरा ढूंढने का काम करते हैं। आपने खबरें भी सुनी होंगी कि किसी को हीरा मिला, 30 लाख का बिका, 35 लाख का बिका। ये इलाका माइनिंग का इलाका है, लेकिन उसका पैसे का विकास इस इलाके में उस तरीके से हुआ नहीं। एनएमडीसी जो कि एक बड़ी परियोजना थी, बंद हो गई थी हीरा निकलने की, जिसमें तमाम तरह की परेशानियां थी, क्या वो चालू करा पाया आप किस तरीके से? मनोज जी, जब मैं आया था तो एनएमडीसी को लेकर के बड़े प्रश्न थे, और ये हमारा पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर के एनएमडीसी को बंद कर दिया गया। ये बड़ा टास्क था यहाँ की जनता का। पन्ना की पहचान, एनएमडीसी पन्ना की पहचान थी। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं निकलता है तो पन्ना में निकलता। तो ये बड़ा चैलेंज था कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर के कि पन्ना की एनएमडीसी की खदान, ये हमारे लिए चैलेंज थी कि इसे शुरू करना चाहिए। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी स्नेह हमारे ऊपर है। बुंदेलखंड आए, पन्ना भी आए, उन्होंने सब देखा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन चीज़ों को हमें परेशानियाँ आ रही थी, उन सारी चीज़ों का समाधान करके आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि एनएमडीसी अब पन्ना का शुरू हो गया है। इस क्षेत्र की जो पहचान थी वो सबने पुनः शुरू किया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और हमारे भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने हर प्रकार से सहयोग मदद इसमें की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर के फाइनली एनएमडीसी की शुरुआत पन्ना के अंदर हो गई। लेकिन आप चुनाव किससे लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए तो सामने कोई है ही नहीं। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और गठबंधन के लिए एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, और समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वो कैंडिडेट जब खड़ा हो गया तो उस कैंडिडेट का जो पेपर है, जो जमा होते हैं डॉक्यूमेंट हैं, वो इनवैलिड हो गया, और वो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो गया। अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को अब कांग्रेस और सपा समर्थित कर रही है। मेरे ख्याल से आपके सामने तो मैदान खाली है, कोई है ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये सीट इंडी गठबंधन को दी, सपा को सौंपी, लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम सपा और कांग्रेस के जो आपसी विवाद है, विधानसभा में भारी झगड़े हुए, और ऐसे झगड़े नहीं हुए कि आमना सामना हुआ अखिलेश यादव और कमलनाथ जी का। मुझे लगता है उनकी आंतरिक कलह और उनका वकील, उनका आरोप था उनके वकील ने कुछ ऐसा कर दिया, वकील कांग्रेस का था, वगैरह वगैरह, जो भी हुआ हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, बुंदेलखंड की इस धरती पर जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उससे घबरा करके पिछली बार ही जनता ने मुझे 4,93,000 से आशीर्वाद दिया था। केवल 173 बूथ 2293 में से केवल 173 बूथ हमारे थे 2019 में। और इस बार जो मोदी जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र को है कि G20 देशों की बैठक भारत के अंदर होती है, तो प्रधानमंत्री जी खजुराहो को भी सिलेक्ट करते हैं, और दुनिया के लोग खजुराहो आते हैं। तो यहाँ की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो ये इनको लग रहा था कांग्रेस एनडीए गठबंधन को कि यहाँ हमारी दाल नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, वो छोड़ के भाग गए। लोग कहते हैं कि जो कैंडिडेट था गठबंधन का, वो कैंडिडेट आपसे प्रभावित हो गया, या आपसे डर गया, या कहीं ना कहीं आपके ऑरे में आ गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पर आप मुझे सालों से जानते हैं, हम जो राजनीति करते हैं वो तो हम एक ऐसी राजनीति की स्वच्छता के साथ, जनता के सहयोग से, जनता के लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को जो भी लगा हो, लेकिन ना यहाँ दबाव की राजनीति होती, न प्रभाव की राजनीति होती। हम तो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। तो इसलिए अब जनता की सेवा की राजनीति से उन्हें डर लगा हो कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, जमीन में, यहाँ जब जमीन को कुरेदते हैं तो ये वो भूमि है मनोज जी जहाँ भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे, जहाँ प्रसंग है कि उन्हें शस्त्र सौंपने का काम भगवान राम को अगस्त मुनि ने यहीं किया है। तो ये भूमि तो राम की भूमि है। अब राम की भूमि पर रामद्रोही जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों, अब ऐसे लोगों को डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा कि तो राम की भूमि है।
और राम ने हमारा कमाल क्या कर होगा? तो कांग्रेस पहले ही चालबाजी करके चली गई। कांग्रेस ने चालबाजी की, यहाँ कुछ है नहीं, इनको सौंप दो। वो आए, पहले प्रत्याशी दिया, फिर बदला, फिर दूसरा प्रत्याशी आया। अब उनको भी क्या लगा, क्या झगड़ा हुआ, तो राम की भूमि पर राम दो ही मैदान छोड़ करके भाग गए। चीजें नहीं है। He now steps out to canvass the constituency. तो जैसा कि आपको पता है, मैं खजुराहो लोकसभा में हूं और इस वक्त पन्ना में एक श्री कृष्ण का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अगर धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, राम के इर्द गिर्द घूम रहा है, कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसमें गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद तमाम लाडली बहनाएं, महतारी बंधन हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, ये सब हमारे साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस वक्त मंदिर में हम मौजूद हैं, मंदिर की आरती भी देखी और हमने सब देखा, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का संगम हो चुका है। वो संगम क्या कहता है? कहीं ना कहीं राजनीति का संगम जो हो चुका है ये अलग बात है, लेकिन जो मंदिर से जो आर्थिक लोग जुड़े हैं, श्रद्धालु अपने, वो मंदिर से ही जुड़े हैं। इसीलिए हम लोग ये राम जन्म उत्सव मनाते हैं। राजनीति एक अपनी जगह है और धर्म श्रद्धालु जो यहाँ पे हैं पन्ना धाम में, तो चारों धाम बार बार, पन्ना धाम एक बार। पन्ना धाम एक बार। मोदी जी के रहते हुए राम मंदिर बन गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा। हम उत्साह हैं अंदर से, बहुत अच्छा। अब राम मंदिर का जो निर्माण कराया है, सदियों पुराना काम जो आज उन लोगों ने मतलब किया है, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद दे सकते हैं जी। बस बहुत अच्छा हम कहते हैं। उनके पीछे जो हमको दर्शन मिले राम लला के, बहुत अच्छा उमंग आई मन में, बहुत अच्छी बधाइयाँ हमने गाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट क्या देख के देखते हो? बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा को लेके वोट देते हो या धर्म के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम। सिर्फ धर्म के नाम? नहीं, धर्म के नाम। सुविधाएं देते हैं, उनके लिए वोट देते हैं। जो सुविधाएं देते हैं, सुविधा क्या क्या हुई? जो सुविधाएं देंगे जैसे लाइट, बिजली और भी गरीबों को वो। और लाडली बहना के 1250 रुपए? वो तो खुशी उनकी दे, आज बंद कर दे तो कोई दिक्कत उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बताइए आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे, जो सबकी सलाह तो हमारी ही है। और क्या पन्ना में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है। हुआ है? क्या क्या में विकास होता है हमारे यहाँ। जल पानी की जो सुविधाएं ऐसी हैं वो शायद कहीं नहीं होंगी। जी आपकी बार क्या होगी? आपकी बार अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे फिर से तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब की बार लेकिन बुक तो करें, अब की बार 400 पार। हाँ तो वो तो है ही 400 पार। अच्छा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सब चिल्ला रहे हैं ऐसे ही। राम का उनका राम का आ गए जी। कृष्ण का आशीर्वाद है, पूरी महिलाओं का आशीर्वाद है, किसका? पूरी बहनों का आशीर्वाद है। अच्छा, इस बार में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव को महिलाएं किस नजर से देखती हैं? मेरा मत है, मैं अपने पन्ना को विकास होना देखना चाहती हूँ। जो पन्ना में विकास करेगा मेरा मत उसके साथ। तो पन्ना में विकास हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है, क्यों? ना के बराबर है। ये स्टार्टिंग है, नल कनेक्शन दे दिया या रोड ठीक करा दिया, ये स्टार्टिंग है। विकास उसको कहते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ना कोई जॉब है, ना कुछ, बेचारे पढ़ लिए लिख लिए, 5-5 हज़ार रुपए में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये विकास है क्या सर? इसको विकास कहेंगे? पलायन है, ये तो पलायन और विरोध है। यंग जनरेशन में बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं। जरा ऐसे बच्चे 11वीं पास कर लेते, 12वीं और बस बाहर चले जाते हैं। फिर तो आप 400 पार फिर भी करोगे? 400 पार नहीं, अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे अगर लड़ेंगे? मान लो उनका बच्चों का विकास होता है, वो होता है, तब तो ठीक है, वरना विकास नहीं होता है तो फिर क्या? आप बताइए। एमएससी टॉप भाग रहे बहुत लड़के कर रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एमएससी टॉप भाग रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। महंगाई ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा भैया, अच्छा, क्या क्या? सब कुछ महंगाई में है। तेल, नमक, जीरा, मिर्चा, सब कुछ धनिया बढ़ा दो। का महंगाई की कहिए, बताओ आप। तो यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब महंगाई, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है साहब, फिर भी आप लोग मोदी को चुन रहे हो, ये क्यों? मोदी को तो हम लोग इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो न्याय का ही साथ देते हैं और न्याय में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, लेकिन पन्ने जिले के जो विकास है वो थोड़ा सा अगर धीमा है तो वो अपने देश के नेताओं की गति है। ऐसा नहीं है कि मोदी। ऐसा है कि देखिए विकास के लिए है तो एक कोई सोचे कि पिछड़ा बड़ा को ज़्यादा सुनते हैं, तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए पढ़े लिखे से जो मतलब अपने उन्नति से पाते हैं नौकरी सर्विस, ऐसा थोड़ी है कि कोई लाज घूस दे करके पा जाता
जाते हैं। ये तो धर्म का काम है, देखो न्याय करते हैं, सब करते हैं, ये थोड़ी। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, परेशानी है, विकास नहीं है, और राहुल गांधी भी तो यही कह रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, उनने 1 का दुगना वेतन भी तो देना चालू कर दिया है। हाँ, सबको आवास भी तो दे दिए हैं, 3 मंजिल में भी तो रहने लगे हैं। पहले टपरिया थी, है ना, तो अब मैं आवास दे दी। आप बताइए। सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया जी। कोई भाई तो सर्विस मोदी सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होना चाहिए, सबसे यहाँ पिछड़ा है, पढ़े लिखे आज लड़के बच्चे हैं। फैक्ट्री खुल जाए तो इसमें काम में लग जाए लोग। कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह अच्छी हो जाए, सुविधाएं हो जाए, जो लोग जरा जरा से इलाज के लिए सपना जाते हैं। तो फिर भी वोट किनको देंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको, आप उनको लाओगे? नहीं, वोट तो देखिए आप महंगाई से परेशान है, तब परेशान है, महंगाई से परेशान तो ही, लेकिन हम बचपन से मोदी के हैं। अच्छा आप जी नहीं, मोदी के तो हम भी हैं, पर यहाँ पर सर कोई रोजगार मतलब रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो भी कुछ नहीं है, तो नहीं है। हमें यहाँ के नेता हैं जो तो रोजगार जीत जाते हैं तो वादा तो कुछ करते हैं, फिर करके कुछ नहीं दिखाते हैं सर। तो भी नहीं, मोदी नहीं है फिर। अच्छा मोदी है सर, मोदी है। रामलला के आज 500 बरस से डला था जो मंदिर, उन्होंने निर्माण किया। देखिए सब जो उन्हें इतना सब मतलब सभी की लड़ाई शांत कराई। The inauguration of the Grand Ram Temple in Ayodhya has touched the hearts of Hindus across the country. And Khajuraho is no different. But will it be the only criteria on the basis of which people cast their vote? We will soon find out. That was the NewsX Road Stop in Khajuraho. Keep watching our non-stop ground series.